performance. When we are discussing about the several academic writing, it has a specific way of writing that we need to follow. And in this specific writing, we need to have a referencing system. There are several styles of referencing, like we have to do APA 6, American Psychological Association style. Here are several versions of this American Psychological Association style, 6th version and 7th version. Nowadays, 7th version is very latest. Then we have another famous style of writing, that is Harvard system. So we will start with why we need to refer our work, why we need to cite our work, and how we would have to suppose to cite our work, and why there is specific need to follow a specific style. We will start from that. I like to share some slides so that it is easier for all of you to understand, and later on I will guide you to do referencing with a software that is EndNote. We have the 20th version of EndNote, we will follow that. So what is a reference starting from this? So obviously the referencing is specially used for academic writing. When we are writing some assignment, we are writing a piece of information that is related to our academic research and academic work, theories, quotations, facts, figure, evidences, anything we are going to write, that is all about the referencing, that all need the referencing system, that all need to be cited, that we have taken these things from a specific book, academic book, from an academic thesis, quotations, some source like website, journal. Academic writing is very different from the professional writing. So it is necessary to cite that writing. It is necessary to write to cite that we are taking these things from these sources. So we need to cite it accordingly. I do need plagiarism from academic theft. Plagiarism is a kind. I am not copying these theories. It is referred. It is produced. It is referred by someone else, and I am using it for my work. So it avoid me from the theft, academic theft, which is plagiarism. So I was discussing about the in-text citation. In-text citation is basically the part of the reference which details are in the list of your bibliography, in the list of your references. It is just a part of citation with year, like Samra in 2011 has described these things. For example, Rafi in 2010 has described these things. So has discussed. So this is simply the in-text citation, and its detailed reference has been cited in the end of your document, which is bibliographic list or the list of your references. Let's start with the Harvard referencing style. Here I am going to start the type of reference, its format and bibliographic example, and also how you can cite that in text while writing simply. For example, you have to cite a book with one author. It is the type of reference, book with one author. First of all, you have to write the family or surname, initials, not the complete, family or surname, then comma. After that, you have to write the initial. Then publication year in the bracket. You have to write the publication year in the bracket. Book title should be italicized. It should be italic, and as well as it should be bold. Both things are necessary. In the Harvard style,
you have to complete write the surname or the family name, then with the comma initial of first name, then full stop. In the bracket, the year of publication. Then you have to write the book title, that should be the in italic form. You have to follow, you can follow basically two different things. One underline and the second one it could be italic. You can follow any of them. Like आप इसको चाहे तो बोल्ड करके इटैलिसाइज कर सकते हैं, और you can underline the text with the regular writing, not with the bold or italic, but with the regular writing. You can underline it. इन दोनों स्टाइल्स में से आपको एक फॉलो करना है, दोनों फॉलो नहीं करने, एक फॉलो करना है. Then series, title and volume if applicable, like second edition, third edition series. अगर उसके कोई specific volume होते हैं, third volume, sixth volume, fifth volume, if it is any of them. If there is edition, then you have to write the edition. If there is the volume, then you have to write the volume. The next thing, you have to write the publisher name and the place of publication. For example, New York Open University Press. Publication place first, then with the semicolon, you have to write the publisher name. Here is the bibliography example. Meanwhile, comma, C. 2010, the complete guide to referencing and avoiding plagiarism. Second edition is the edition number, then the name of the city or the name or the place where that has been the published, and then the name of the publisher. So you have to write it accordingly. You have to follow the comma, full stop pattern while making your referencing in Howard style. First, you have to follow the format, then you have to make your own reference according to that. Then in-text citation. In-text citation in Howard and especially in APA is approximately the same. There is no much difference in in-text citation of APA 6 and Howard style. Meanwhile is the last name of the author. Meanwhile is simply the last name of the author. Then you have to put a comma and year in the bracket. You have to cite it while writing. This is also called CW, RW, like cite while writing. If we have multiple authors, like we have more authors than one, 2 or 3 authors, then simply we have to write the last name, comma, the initial. After that, full stop and comma, last name, comma, the initial. We have to write in a row all 3 names, then bracket, and the rest of the things will be the same. That you would have to follow for up to 2 and 3 authors. But if we have 4 authors or more, if you have 3 authors, simply you have to line them in a row. But if you have more than 3 authors, you have to write an abbreviation, that is et al, ETAL, that is et al. I hope you guys are understanding the format because it is necessary. Is there anybody listening to me? Please give me some responsive. Assalamu alaikum, madam. Madam, the slides are not. Walaikum assalam. जी जी. Slides are not visible? No. Let me check.
और एक और चीज़ Now, कि 10 मिनट में मैडम ये सेशन एंड हो जाएगा तो हम इसी लिंक के थ्रू दोबारा से ज्वाइन करेंगे। okay, fine, okay, fine. Now, can you guys see the slide? यस मैम। Okay. Whenever slide disappear, because sometimes we have weak internet connection and slide got disappear, so immediately inform me. It is for first author, simply the last name and with the comma and initial. When we have 2 to 3 authors, we will add the names. The rest of the reference will be the same. But when we have more than 3 authors, 4 or more, any number, 4 or more, then we have to write in a different way. That is the family or surname of the first author, or the family or the surname of the corresponding author. Now you have to check that it must be the first author or the corresponding author. Corresponding author is that author who is corresponding for the things of that book or that paper. Usually in paper and books, there are mentioned with the name of author that he or she is the corresponding author. ब्रैकेट में इनके साथ लिखा हुआ होता है कि ये हमारा बंदा जो है ये corresponding author है, और ये हमारा लाइक फर्स्ट ऑथर का तो पता ही चल जाता है ना कि वो पहले नंबर पर उसका नाम होता है। सेकेंड और थर्ड ऑथर का ये होता है कि उसका जो नेम होता है वो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग अगर ब्रैकेट में लिखा होता है तो फिर हम उसका नेम यूज करते हैं, बिकॉज वो कॉरस्पॉन्डिंग कर रहा होता है उस बुक को लेके। किसी ने उसकी कुछ डिटेल चाहिए, किसी को उसका कुछ डेटा चाहिए, कोई सप्लीमेंट्री फाइल चाहिए, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर को यूज करते हैं। आपने अब सारे ऑथर को लिस्ट डाउन नहीं करना। जब आपने 4th नंबर पर आना है, 4 हैं आपके पास ऑथर्स या 4 से ज्यादा है, like Campbell N.A et al. Et al. ETAL with the ET space AL. That should be in not in italic, not in bold. That must be regular. ET space AL. After that dot and then year, and the rest of thing will be the same. And when we are writing the citation, Campbell et al. Full stop, comma and the year. And if we are writing in the starting, then we will write it as Campbell et al. 2008 stated. See the difference? जब आपके पास एक ऑथर था तो वो नेम जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, ईयर की ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। बट व्हेन वी हैव 4 और मोर ऑथर, तो आपने नेम को ईयर की ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखना, चाहे वो रेफरेंस आपका एंड पे आ रहा है या वो रेफरेंस आपका स्टार्टिंग पे आ रहा है। इन बोथ केसेस यू डोंट हैव टू एक्सक्लूड द नेम आउट ऑफ द ब्रैकेट। Quotation Campbell et al. Page number 76. Page number is really necessary when we are in text writing in Howard style. When we are writing in the APA style, then page number is not necessary. We will discuss it later. Page number is really necessary during the citation, during the in-text citation. Like जब in-text citation का I hope concept clear हो गया होगा। जो आपके document में एक small reference होता है, एक छोटा सा आपने हिंट रेफरेंस देना होता है कि इसकी डिटेल्स जो है वो आपको वहां आगे जाके मिलेंगी, बिब्लियोग्राफिक लिस्ट में मिलेंगी, या इसकी डिटेल्स जो है वो आपको रेफरेंसिंग लिस्ट में मिलेंगी। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? आपने अपने डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए जहां कहीं से भी कोई भी मटेरियल लिया है, ठीक है, और आपने उसको एज ए लिस्ट ऐड कर दिया है कि यहाँ ये हमने बुक पढ़ी थी, उसमें से आपने चाहे लिखा कुछ ना हो, लेकिन हमने ये बुक पढ़ी थी और उसको आपने रेफरेंसिंग की लिस्ट में ऐड कर दिया, वो होती है आपकी बिब्लियोग्राफी। मतलब कोई भी रेफरेंस जो उससे रिलेटेड हो, और वो रेफरेंस जो आपने साइट किए हैं और जस्ट उसकी अगर लिस्ट दी है, वो होती है आपकी रेफरेंसिंग लिस्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। अगर आपके पास कोई बुक है जो एडिटरशिप से आई है, तो फिर उसका रेफरेंस थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, अगर आपके पास कोई बुक है जो किसी जी, Dr. Noshin, we have some students with us here.
If you can show an example, it would be easier for them to understand. Is it possible? ये और अच्छा, एक एग्जांपल तो ये कॉलम में चल रही है ना आपके पास, जी, ठीक है। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन। ओके ओके, मैं कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से ओपन कर लेती हूँ, वी नो कैन डू प्रॉब्लम। दिस एट द एंड ऑफ सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। फिर भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लें चीज़ों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अच्छा, हम बात ये कर रहे हैं कि जब आप उसको लेकर चलेंगे, ये कोई बुक है जिसकी का कोई ऑथर था, कोई भी प्राइवेटाइज बुक है जिसका ऑथर था और वो किसी प्रेस के थ्रू पब्लिश हुई। अब अगर कोई स्पेसिफिक बुक होती है जो एडिटरशिप के थ्रू पब्लिश होती है, उसका रेफरेंस फिर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसकी इंटेक्स्ट साइटेशन में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं आता, बट उसके रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। उसका क्या है कि आपने उसके एडिटर को जरूर मेंशन करना होगा। लाइक फॉर्मेट को देखिएगा गौर से, फैमिली और सरनेम आ गया, जो इनिशियल है वो आ गया। फैमिली और सरनेम जो है वो आपने एडिटर का लिखना है, ऑथर का नहीं लिखना। फैमिली एंड सरनेम ऑफ एडिटर। ये एडिटरशिप की बुक्स का ये सीन होता है कि ये बुक्स ऑन द कॉल ऑफ पेपर होती हैं। लाइक ये बुक्स इसमें हर चैप्टर एक डिफरेंट बंदे ने लिखा हुआ होता है, वो एडिटर बुक होती है। और जो आपकी सिंपल बुक्स होती हैं दूसरी, वो आपकी ऑथर। मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे पास बुक्स की भी दो टाइप्स होती हैं। पहले जैसे भी मैंने बताया कि अगर कोई बुक है आपके पास, उसमें एक ऑथर है, दो ऑथर हैं, तीन चार ऑथर हैं, इस तरह से आप और फिर कोई बुक आ जाती है जो एडिटरशिप पे होती है। अब उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उस बुक की पहचान क्या होती है, कैसे पता चलेगा आपको कि ये एडिटरशिप बुक है, और कैसे पता चलेगा ये सिंपली टेक्स्ट बुक है जिसको आप साइट करने जा रहे हैं। जो आपकी सिंपल टेक्स्ट बुक होती है उसमें आपके जो पेज होते हैं, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, और फिर नीचे लिखा हुआ फिलिप कॉटलर, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, ए सिंपल टेक्स्ट बुक। इसको आप सेम वे में ही साइट करेंगे जैसे कि अभी बताया गया। शेयर, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और जो आपकी एडिटरशिप बुक्स होती हैं वो उनमें ऐसा कुछ होता है कि उसमें हर चैप्टर एक अलग ऑथर ने लिखा होता है। इन सच केस आपको किस ऑथर को साइट करना है या किस ऑथर को साइट नहीं करना, तो उसका ये प्रोसेस है कि आपने रेफरेंस लिस्ट जो बनानी है या साइटेशन जो करनी है वो एडिटर के नेम से करनी है, और ब्रैकेट में उसके साथ ईडी ऐड करना है बिकॉज ही और शी इज द एडिटर। फैमिली और सरनेम सेम प्रोसेस पे आपने लिख देना है, इनिशियल्स के साथ बाद कॉमा आ जाएगा, and then you have to write the editor ed dot in the bracket because he or she is the editor of that very book. Then after that you have to write in the bracket an year and the book name and also the same thing, जगह का नाम, place of publication and publisher. The rest of the things is same. एडिटर का थोड़ा सा सरनेम के साथ ईडी के एडिशन हो गया, और यहाँ पर किस ऑथर को साइट करना है आपने, एडिटर को। साइटेशन की बात कर रहे हैं हम। साइटेशन के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए अभी निकाला है, मैं थोड़ा सा उसको दिखाती चलूं। इंडेक्स साइटेशन कैसी होती है और रेफरेंसिंग कैसी होती है, को आगे भी बढ़ाते हैं। ये तो बात थी कि आपने पूरी बुक को साइट करना है तो किन चीजों को हाईलाइट करना है। ये जो स्लाइड्स हैं इस फॉर्मेट, इस टेबल को आप संभाल के रख लीजिएगा। ये सब चीजें याद नहीं रहेंगी। जब भी कभी आप रेफरेंसिंग करने बैठेंगे इस टेबल को सामने रखें, और जिस चीज की भी रेफरेंसिंग कर रहे हैं उसका फॉर्मेट देख के उसका रेफरेंस बना ले। और उसके बाद जो हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हमारी स्मार्ट वर्किंग है, स्मार्ट हमारी जो चीजें हैं वो सब बहुत हम इजी वर्किंग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजिकल
एज में है, तो ऑब्वियसली सब चीजें हम सॉफ्टवेयर से भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो इंडेक्स साइटेशन है उसकी मैं एग्जांपल एक रिसर्च पेपर में दिखाती चलूं। आई एम गोइंग टू शेयर दैट। अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर आ जाता है आपके पास, लाइक आप किसी बुक में से साइटेशन कर रहे हैं, पूरी बुक की साइटेशन आपने कैसे की ये भी पता चल गया, आपने उस अगर कोई एडिटरशिप वाली बुक है उसकी साइटेशन कैसे की ये भी पता चल गया। अब अगर कोई चैप्टर आ जाता है, यानी कि आप पूरी बुक को साइट नहीं करना चाह रहे, आप किस उस चैप्टर को साइट करना चाह रहे कि स्पेसिफिक चैप्टर में ये बात है, पूरी बुक हमारे कंसर्न की नहीं है, तो इन सच केस हमें क्या करना है और किन चीजों को साइट करना है, फिर उस चैप्टर के ऑथर पर आ जाते हैं, उसका फॉर्मेट खोलेंगे। साथ साथ यस इट इज। आई होप आप लोगों को अब ये स्क्रीन एक पेपर की नजर आ रही होगी, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाइट ओशन स्ट्रेटेजी, कस्टमर वैल्यू एंड कस्टमर एंगेजमेंट। Screen is not visible, Dr. Noshin. Now visible. Thank you. ओके, इसमें हम थोड़ा सा इंडेक्स साइटेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। In his study, second paragraph, line number 1, 2, 3, 4, and 5. In his study, Suki 2016 B proves that customer environmental knowledge is blah 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 and this thing. So it is in-text citation. Author का name, last name, surname, full name, and in the bracket we have the year. Similarly, the first paragraph, first line, Terrason et al. 2021 in their research on the automobile business found that blah blah anything. Why there is at all? Because there may be more than 4 authors, 4 or more author, मतलब 3 से ज्यादा ही हैं, 4 हैं या हो सकता है 4 से भी ज्यादा हो। Then NGO et al, Nigo et al, 2019 in their study, when we are starting our sentence with the author name और with the citation, तो जो year होता है वो ब्रैकेट में चला जाता है, ठीक है। और जब हम बात कर रहे होते हैं किसी बात को कंप्लीट करके उसका रेफरेंस दे रहे होते हैं, उसको साइट कर रहे होते हैं, तो जो आपकी पूरी साइटेशन है, ये मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, ये आपकी सारी साइटेशन जो है वो एंड पर आ जाती है। अब यहाँ पर ये मल्टीपल साइटेशन बेसिकली हुई भी है, हम इसको भी अभी देखते हैं। अब अभी के लिए आप इतना देखिएगा, Itani et al 2019, simply bracket close. So this is just a way to in-text citation. Here, Green and Pilosa 2011. ये पेपर जो अभी मैंने डिस्प्ले किया ये एपीए साइटेशन में है, इसलिए इसका थोड़ा सा फॉर्मेट शायद चेंज लग रहा होगा आपको, जो हम अभी फॉर्मेट दिखा रहे थे स्टाइल साइटेशन। यूजुअली जो रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं वो एपीए स्टाइल साइटेशन में लिखे जाते हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे चैप्टर जो एडिटर बुक का जो चैप्टर होता है उसको शेयर करती हूँ कि उसकी साइटेशन कैसे की जाती है। अच्छा, एडिटर बुक का रेफरेंस कैसे देना है ये भी हो गया, एडिटर बुक का रेफरेंस कैसे देना है ये भी हो गया। अब मे बी हमें एडिटर बुक के किसी स्पेसिफिक चैप्टर का रेफरेंस देना हो, क्योंकि एडिटर बुक जो होती है उसमें हर चैप्टर एक अलग ऑथर ने लिखा होता है, एक या मल्टीपल अलग ऑथर्स ने लिखा हुआ होता है, तो फिर उसका स्टाइल भी चेंज हो जाता है थोड़ा सा। वहां पर हम बुक के टाइटल को भी मेंशन कर रहे होते हैं और बुक के एडिटर को भी मेंशन कर रहे होते हैं, साथ में उस चैप्टर के ऑथर को भी मेंशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे रेफरेंस बनाने का स्टाइल फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मेट आपके सामने है, आई होप आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ये आपके पास है जी, फैमिली और सरनेम, इनिशियल आ रहा है, साथ में आपके जो, पहले मैं इसको स्लाइड शो कर दूं, ऊपर जाओ भाई।
यहाँ पे आपने फैमिली और सरनेम, फिर इनिशियल ऑफ ऑथर, किस ऑथर का फैमिली और सरनेम चल रहा है जिसका आपने चैप्टर साइट करना है, पब्लिकेशन ईयर इन द ब्रैकेट, देन आपने टाइटल ऑफ चैप्टर लिखना है इन द मतलब बुक का टाइटल नहीं आया, टाइटल ऑफ चैप्टर आया, एंड दैट मस्ट बी इन रेगुलर राइटिंग, नॉट इन द बोल्ड और इटैलिक। जैसे अभी बुक का नाम जो था वो बोल्ड और इटैलिक था, अगर आप बोल्ड और इटैलिक नहीं कर रहे तो आपने उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। सिंपली ऑथर का नेम, इनिशियल, चैप्टर का टाइटल, पब्लिकेशन ईयर, ये सब चीजें अरेंज फॉर्मेट में। देन एडिटर बुक के, फिर दूसरी चीज क्या एंटर करनी है आपने, बुक के एडिटर, और उसका वही सेम होगा कि आपने एडिटर की ब्रैकेट में आपने ईडी डाल के डॉट लगाकर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। फिर बुक का टाइटल लिखना है, दैट मस्ट बी बोल्ड एंड इटैलिक, सीरीज या वॉल्यूम अगर कोई है उसकी, लोकेशन, द रेस्ट ऑफ द थिंग आर द सेम, सीरीज, वॉल्यूम, लोकेशन और पब्लिशर का नेम। बेसिकली अगर आप इसका थोड़ा सा की देखेंगे, सारा रेफरेंस आपके पास सेम ही है जो एडिटर बुक का है, बस उस रेफरेंस से पहले आपने ऑथर का नेम और चैप्टर का नेम ऐड करना है, और जो ईयर है उसको भी आपने ऑथर के नेम के बाद ले जाना, ठीक है। दिस इज द की ऑफ शॉर्ट की, के पहले आपने पूरा रेफरेंस वैसा ही बना लें जो एडिटर बुक वाला था, और बस आपने ऑथर का नेम और चैप्टर का नेम ऐड करके ब्रैकेट में ऐड कर देना। कॉर्पोरेट ऑथर्स अगर आ जाते हैं आपके पास, कोई हम किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को साइट करने जा रहे हैं जिसमें आपके पास कोई कॉर्पोरेट ऑथर आ गया है, तो इन सच केस आपने क्या करना है, जैसे वो होती है ना रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स होती हैं, आप उनको साइट कर रहे होते हो, तो इन सच केस आपने क्या करना है, सिंपली उसको जो पब्लिकेशन है उस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट की, उस पब्लिकेशन का टाइटल, कंप्लीट जो टाइटल है वो लिख लेना है। फिर उसके बाद उसकी जो इशूइंग बॉडी है, डिपार्टमेंट होता है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट है, कोई आपके पास होम डिपार्टमेंट है, जो भी उसका डिपार्टमेंट होता है, पब्लिशिंग बॉडी होती है, इशूइंग बॉडी होती है, उस डिपार्टमेंट का कंप्लीट नेम आ जाता है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, देन वी हैव द प्लेस, एंड एट द वेरी एंड द पब्लिशर नेम, जिस डिपार्टमेंट ने उसको पब्लिश किया होता है। यूजुअली पब्लिशिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑथर के केस में सेम होता है, समटाइम थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, जैसे अगर हमारी जो वो डॉक्यूमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया है और जो उसका पब्लिशिंग डिपार्टमेंट है वो होम डिपार्टमेंट है, तो फिर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज इट इज सेम। साइटेशन, जो इंटेक्स साइटेशन है वो सब में सेम चल रही होगी, एक्सेप्ट आपने अभी तक ऊपर से चलते आ रहे हैं, बुक की थी, बुक एडिटर्स की थी, चैप्टर्स की थी, सब में सेम चलती आ रही होगी। जब आप कॉर्पोरेट ऑथर पर आए हैं वहां आकर आपने साइटेशन में ईयर भी ऐड करते हैं, एंड इट मस्ट बी, सॉरी, साइटेशन में ईयर सब जगह ही ऐड हो रहा है, सॉरी ये APA 6 का मैंने मिक्स कर दिया। देन वी विल गो फॉर द ई बुक। ई बुक में क्या चीज ऐड हो जाती है, आपका URL, जिस URL पर आपने उसको ई बुक को पढ़ा है, देखा है, वो सबसे पहले यहाँ पर आपका फैमिली नेम, सरनेम ऑथर का, बुक का नाम आ गया, पब्लिकेशन ईयर इन द ब्रैकेट, देन वी हैव ऑल्सो द बुक टाइटल इन इटैलिक एंड ऑल दैट, और फिर उसके बाद अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन के लिए आपने अवेलेबल लिखकर और उस बुक का URL लिख देना है, अवेलेबल, अगर ऑनलाइन अवेलेबल है बुक, ऑनलाइन लिखकर, अवेलेबल लिखकर आपने URL लिख देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ई बुक, आपने उसको कब पढ़ा है, आपने उसको एक्सेस कब किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ई लाइब्रेरीज पर ई बुक्स जो हैं, तो इट इज नेसेसरी टू मेंशन ई बुक कि आपने उसको कब देखा था या आपने उसको कब पढ़ा था, हम फिर उसको असेस करके ब्रैकेट में उसका जो भी हमारा असेसिंग डेट, टाइम, डे होता है उसको मेंशन कर देते हैं, डेट यूजुअली मेंशन कर देते हैं, 6 मई 2012। डेट मेंशन करने का फॉर्मेट देख लीजिए, 6 मई 2012, मतलब मंथ को आपने इन राइटिंग इन वर्ड्स लिखना है, वैसे नहीं कर देना 6/06/2012, ऐसे नहीं लिखना,
बल्कि आपने क्या लिखना है 6 मई MAY मई 2012, मतलब अप्रैल APRIL अप्रैल देन 2022 जब आपने उसको असेस किया। तो इसका स्पेशली ध्यान रखिएगा फॉर्मेट में। किसी फिल्म को या DVD को या किसी डिस्क को आप अगर दे रहे होते हैं रेफरेंस, इसका भी देना पड़ जाता है। तो इन सच केस आपने उसका टाइटल लिखना होता है, और टाइटल जो होता है वो इटैलिक होता है। ईयर, जिस वक्त वो फिल्म पब्लिश हुई, जिस वक्त वो फिल्म ऑनलाइन आ गई, अवेलेबल हो गई, उस वो ईयर। ठीक है। मटेरियल टाइप, एनिमेटेड फिल्म है, जो भी मटेरियल टाइप है, ठीक है, वो लिख देते हैं। देन डायरेक्टेड बाय, हु इज द डायरेक्टर, डायरेक्टेड बाय, द नेम ऑफ डायरेक्टर, क्लियर। देन जिस सोर्स से या जिस प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, नेटफ्लिक्स है आपके पास कोई और DVD का सोर्स है, तो आपने उसको जिस सोर्स से वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है मूवी, वो मोमेंटम पिक्चर्स, जैसे यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिख रही है, पैथ डिस्ट्रीब्यूशन, नेटफ्लिक्स, ब्ला ब्ला, जो भी। So if we are referring a film, then we have to do the same thing. Here the animation movement Chicken Run 2000. Like किस कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखने के बाद साइटेशन कर रहे हैं चिकन रन फुल स्टॉप 2000। कोई सेंटेंस आपने लिख दिया है, पूरा सेंटेंस लिख दिया, दिस इज हाईलाइटेड बाय हैरीज कैरेक्टर इन द फिल्म रिक्वेम फॉर अ ड्रीम 2000। लाइक अगर विद इन दी स्टेटमेंट आप उसको रेफर साइट कर रहे हैं अपने ऑथर को, तो फिर आपने इस तरीके से साइट करना। सेम है यहाँ पर, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। साइटेशन आप एक बार करना सीख लेते हैं तो वो सेम चलती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देन वी हैव जर्नल आर्टिकल। अच्छा, ऐसा है डियर पार्टिसिपेंट्स कि ये चीजें थोड़ी सी रेपिटेटिव आपको लग रही होंगी कि सर नेम लिखें और ऑथर नेम लिखें, जर्नल का नेम लिखें, जो भी चीजें हैं वो थोड़ा सा रेपिटेटिव सा फील हो रहा होगा कि आपको। तो इसमें रेपिटेशन है बट माइनर चेंजेस हैं, हर फॉर्मेट में माइनर चेंजेस हैं। जर्नल की बार में कुछ और, थोड़ा सा फॉर्मेट में हल्का सा चेंज आ जाता है, वॉल्यूम नंबर आ जाता है, इशू नंबर आ जाता है। ऑनलाइन जर्नल जो है उसके लिए थोड़ा सा चेंज आ जाता है, न्यूज़पेपर के लिए फिर हल्का सा चेंज आ जाता है। लाइक आपको थोड़ी सी रेपिटेशन फील भी हो रही होगी, लेकिन जो फॉर्मेट में एक माइनर चेंज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर रेफरेंस की हर चीज देना जरूरी भी नहीं है, और हर रेफरेंस की जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट चीजें हैं वो देना जरूरी भी है। तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको लग रहा होगा कि ये चीजें काफी रेपिटेशन में आ रही हैं। ऑथर नेम यूजुअली सब जगह ही सेम चल रहा है कि आपने सब फैमिली या सरनेम देना है और इनिशियल लिखना है, पब्लिकेशन ईयर ब्रैकेट में आ जाता है। यहाँ तक हम काम सेम ही कर रहे हैं। फिर टाइटल ऑफ आर्टिकल की बात अगर हम करें, जर्नल जो प्रिंटेड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, टाइटल ऑफ आर्टिकल रेगुलर स्टाइल में आपने लिखना है, उसको कोई बोल्ड नहीं करना, कोई इटैलिक नहीं करना, लेकिन टाइटल ऑफ जर्नल बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, अदरवाइज अंडरलाइन कर देना। ठीक है। फिर आप वॉल्यूम नंबर लिख देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और इशू नंबर, इन दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है। ये मैं आपको एक पेपर से थोड़ा सा दिखाती चलती हूँ। ये अभी जो हमने पेपर खोला हुआ था उसी के थ्रू दिखाते हैं। वॉल्यूम नंबर क्या होता है, एक ईयर में आने वाले जो आपकी क्या कहना चाहिए, एक ईयर में आने वाले जो इश्यूज होते हैं, वो जो उस ईयर में आ रहे हैं, लाइक वो उस ईयर में जितने भी इश्यूज आएंगे, वॉल्यूम नंबर वही कंसीडर होगा। लाइक वॉल्यूम नंबर 2012 में अगर मैंने अपने जर्नल के 15 से 20 इशू निकालने हैं, 10 इशू निकालने हैं, 6 इशू निकालने हैं, तो मेरा जो वॉल्यूम नंबर है अगर वो 2 चल रहा है तो वो वही रहेगा। तो वो नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली क्या होते हैं, वो वॉल्यूम होते हैं। और नंबर ऑफ इश्यूज क्या होते हैं कि उस ईयर में आने वाले जितने भी इश्यूज हैं, लाइक इसको हम सादा लफ्जों में इस तरह कह सकते हैं कि जो साल होता है ना किसी चीज को चलते हुए, जितने यार ये स्क्रीन में चेंज करने लगी हूँ एक्चुअली, मैं उस पेपर पे आने लगी थी जिसको हेरिटेज, ये देखिएगा
अभी चेंज हो गई है स्क्रीन, आई होप आप लोगों के पास विजिबल भी हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 ईयर है ये जिसमें पब्लिश हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम 13, VOL वॉल्यूम 13। इट्स मीन के लास्ट 13 सालों से, लास्ट 13 ईयर से ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स पब्लिश हो रहा है। जब वो पहले साल पब्लिश हुआ था तो वो वॉल्यूम 1 था, फिर जब वो दूसरे साल पब्लिश हुआ तो वो वॉल्यूम 2 था, थर्ड ईयर में पब्लिश हुआ तो वो वॉल्यूम 3 था, फोर्थ ईयर में पब्लिश हुआ तो वो वॉल्यूम 4 आ गया। उसके बाद आ जाता है नंबर 1, यानी कि इशू नंबर 1। ठीक है, ये जो नंबर 1 है ये 13वें साल में 13th ईयर में पहला इशू पब्लिश हुआ है। फिर 13 ईयर में अगर 2 महीने बाद ही उन्होंने दूसरा इशू निकालना है तो वो 13th ईयर में दूसरा इशू पब्लिश हुआ होगा, और उसमें कोई 5-6 पेपर्स होंगे या जितने भी पेपर होंगे। फिर 13th ईयर में उसी साल वही है, 3 महीने बाद उन्होंने एक इशू और निकाला। ठीक है, तो वो थर्ड इशू पब्लिश हुआ। फिर जब तक न्यू ईयर नहीं स्टार्ट होगा तब तक फिर वो नंबर, वॉल्यूम नंबर चेंज नहीं होगा, इशू नंबर तब तक चेंज होते रहेंगे। वो जब पहली दफा पब्लिश हुआ है उसमें कोई 5-6 पेपर आए हैं, कोई 2-4 बुक्स आई हैं, तो वो वॉल्यूम नंबर 1 था, वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर भी 1 था। लेकिन ईयर वही है, 2022 ही है ईयर, और दूसरा इशू पब्लिश हुआ 2 महीने बाद, उन्होंने एक दूसरा इशू पब्लिश किया जिसमें 6-7-8-10 पेपर की एक फाइल को पब्लिश कर दिया। तो अब वो क्या हुआ, वॉल्यूम नंबर 1 में इशू नंबर 2 हो गया। फिर पहले साल में कोई तीसरा इशू आ गया, वो वॉल्यूम नंबर 1 में इशू नंबर 3 हो गया। इस तरह से चलता है, यानी कि जितने ईयर्स हो जाते हैं उतना वो वॉल्यूम नंबर होता है, और उस ईयर में आने वाले जितने शुमारे होते हैं, जितने वो इश्यूज होते हैं, उनको हम इशू नंबर कहते हैं। इसको हम उर्दू में मैंने स्पेसिफिकली इसको याद किया था ताकि मुझे समझाने में बच्चों को आसानी हो। उर्दू में हम इसको कहते हैं जिल्द, वॉल्यूम नंबर को कहते हैं जिल्द नंबर, और इशू नंबर को कहते हैं शुमारा नंबर। शुमारा नंबर मीन जितनी दफा वो आया है। तो खैर ये उर्दू वाला तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, अभी के लिए हमें वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लेट्स स्टॉप इट एंड कम टुवर्ड्स अवर स्लाइड्स। अच्छा, अब हम ना थोड़ा सा उसको सॉफ्टवेयर पे भी फोकस करते हैं साथ साथ, ताकि हमें उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सॉफ्टवेयर पर जब हम कर रहे होते हैं तो हमें वो कुछ चीजें होंगी जो सिंगल क्लिक से हमें आ जाएंगी, बट कभी कभी इंफॉर्मेशन पूरी सेव नहीं होती तो फिर हम उसको एडिट कर लेते हैं। लेकिन आपने करना क्या है कि फॉर्मेट तो जरूर सामने रखना है। अगर इंफॉर्मेशन उस पर से पूरी नहीं होगी तो वो आपने सर्च करके फॉर्मेट में फिल करनी है, ताकि आपके पास जो रेफरेंस है वो कंप्लीट इस बिब्लियोग्राफिक एग्जाम्पल की तरह तैयार हो सके। ठीक है, तो ये चीजें फॉर्मेट को हमेशा ही आपको सामने रखना पड़ेगा। अगर आपका फॉर्मेट आपके सामने नहीं है तो हो सकता है कि कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन स्किप हो जाए जो जरूरी होता है किसी भी उसको बनाने के लिए। ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कुछ इस किस्म का होता है। अभी आपको यहाँ एक लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दिख रही होगी, क्योंकि मैं कुछ रेफरेंसेस को इंपोर्ट कर चुकी हूँ और मैं इसको कंटिन्यूअसली यूज कर रही हूँ, तो इसलिए आपको कुछ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस जरूर यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ पर आपने जो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम आपने करना है फाइल और एक न्यू लाइब्रेरी जनरेट कर लेनी है न्यू से। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे साथ साथ करती जाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाए। उस न्यू लाइब्रेरी को हम कुछ नेम दे देंगे XYZ, जो भी आपको पसंद आए, और उसका जो एक्सटेंशन है वो ENL से होती है, लाइब्रेरी एंड नोट लाइब्रेरी से उसकी एक्सटेंशन होती है। सिंपली यू कैन सेव दैट एंड आपके पास एक न्यू लाइब्रेरी आ जाती है। Here is my new library। ठीक हो गया, और कोशिश करें कि प्रीवियस वन को बंद कर दें ताकि आपको कुछ मसले मसाइल का सामना ना हो और आप अपनी न्यू लाइब्रेरी पर काम करें।
ठीक है, ये आपके पास लाइब्रेरी आ गई। ये लाइब्रेरी हमेशा के लिए मेंटेन भी हो जाती है, ये कहीं मतलब लॉस नहीं होती, आपके सॉफ्टवेयर में आ जाती है। जब आप दोबारा इसको री इंस्टॉल करते हैं तो फिर से यही लाइब्रेरी आपके पास आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि आप एक बार किसी रेफरेंस को बना लें और उसके बाद जब आपने उसे कहीं और किसी और डॉक्यूमेंट में कोड करना हो तो दिक्कत हो, ऐसा नहीं होता। आप सिंपली उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उस रेफरेंस को कोड भी कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये तो आपकी लाइब्रेरी बन गई यहाँ पे। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमने उन रेफरेंसेस को कहीं से इंपोर्ट करना है तो वो यूजुअली जो इंपोर्ट होते हैं रेफरेंसेस वो गूगल स्कॉलर से इंपोर्ट होते हैं, scholar.google.com से। एकेडमिक रेफरेंसेस आपको पता है, रिसर्च पेपर, बुक्स, एकेडमिक बुक्स, इन चीजों से इंपोर्ट होते हैं, बनाए जाते हैं, यूज होते हैं। तो हम ज्यादातर उसके लिए गूगल स्कॉलर को इस्तेमाल करते हैं। गूगल स्कॉलर में आपने इस सॉफ्टवेयर की एक सेटिंग को एक्टिव कर देना है, वो सबके पास होती है। जस्ट यू हैव टू गो फॉर द सेटिंग्स, और वहां पर आपके पास एक ये होता है, शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशंस इनटू, शो लिंक्स टू इंपोर्ट साइटेशंस इनटू। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सबके पास बिबटेक्स आ रहा होगा, बाय डिफॉल्ट एवरीबडी हैव बिबटेक्स। बस हम इसको चेंज करके एंड नोट में कन्वर्ट कर देते हैं। देन वी हैव टू सेव द सेटिंग्स, ये हमारे पास सेटिंग्स सेव हो गई। ठीक है, तो काम हो गए। पहला आपने काम क्या किया, लाइब्रेरी बना ली। यस, जी मैडम। एनीबडी? ओके, यस। ठीक है, दूसरा काम आपने क्या किया, गूगल स्कॉलर में आपने सेटिंग्स करके सेव करके रखनी, ये भी फॉर एवर सेव हो जाती है। गूगल स्कॉलर जिस भी ब्राउजर पर आप सेटिंग करना चाहते हैं उसको आप फॉर एवर सेटिंग करके सेव कर लें। थर्ड थिंग, आपका डॉक्यूमेंट जिसमें आपने साइटेशन करनी है, कोई भी आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने साइटेशन करनी है। ठीक है, आप अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल लें। जब आप एंड नोट इंस्टॉल कर लेते हैं तो वर्ड और एमएस की पूरी वो जो चीजें हैं, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, और फोर्थ वन तो कौन सा होता है, एमएस ईमेल जो होता है शायद वो, इन सब में एंड नोट बाय डिफॉल्ट एज एन एक्सटेंशन सेट हो जाता है इन सब में। ठीक है, अब आपने काम, जो थर्ड इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये करना है कि आपने जिस डॉक्यूमेंट में साइटेशंस करनी है, जिस डॉक्यूमेंट में बिब्लियोग्राफी जनरेट करनी है, आपने उस डॉक्यूमेंट को भी ओपन कर लेना है। ये तीन चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, समझ आ गई? तीन चीजें कौन कौन सी हैं सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर से फायदा उठाने के लिए। पहला, आपका सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरी जनरेट कर ली। सेकंड, आपने काम किया कि आपने अपने स्कॉलर पर सेटिंग्स कर ली, गूगल स्कॉलर पर सेटिंग्स कर ली। और थर्ड, आपने उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया जिसको आप, जिसमें आपने रेफरेंसेस करने हैं, जिसमें आपने साइटेशंस करनी है। ठीक है, जी ये मैडम। तीनों काम आपने कर लिए। गुड, ओके। अब यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा साथ साथ लिखती हूँ और आपको साइटेशन करके दिखाती हूँ। अच्छा, वर्ड पर आप देखोगे, वर्ड पर ना एक वो एक्सटेंशन सी बन जाती है छोटी सी, जिस वक्त आप एंड नोट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एंड नोट 20, दिख रहा है? जी जी। ओके, हो गया। यहाँ पर मैं साइटेशन करने जा रही हूँ, कोई भी आपने चीजें जो है वो टाइप की। मेरी ख्वाहिश है कि आगे मैं कोई रेफरेंस लगाऊं और वो रेफरेंस किसी रिसर्च आर्टिकल का है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो रेफरेंस किसी रिसर्च आर्टिकल का है। वो रिसर्च आर्टिकल गूगल स्कॉलर पर अवेलेबल है मेरे पास। वो आर्टिकल किसी बुक का है एग्जाम्पल, या वो आर्टिकल किसी रिसर्च पेपर का है, ये रिसर्च पेपर है, इसकी एग्जाम्पल। जब आपने सेटिंग की थी ना गूगल स्कॉलर पर, तो यहाँ पर एक ये एक्स्ट्रा टैब आने लगी थी, एक एक्स्ट्रा लिंक आने लगा था, इंपोर्ट इनटू एंड नोट। इससे पहले ये नहीं था, ये उस सेटिंग्स के बाद आता है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस इंपोर्ट को क्लिक कर देना है, ऐसे। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इंपोर्ट इनटू एंड नोट को क्लिक कर दिया है।
और रेफरेंस ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि मैं वहां लाइब्रेरी जनरेट कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन करने लगी हूँ सॉफ्टवेयर को, और यहाँ पर एक मेरे पास रेफरेंस जनरेट होकर आ जाएगा। इंपोर्टिंग का प्रोसेस दिख रहा होगा, जी एंड मैडम। हियर इट इज। ये आ गया रेफरेंस आपके पास। ओके, दिस रेफरेंस बाय डिफॉल्ट APS 6 में आपको दिख रहा है। अब हमने इसका फॉर्मेट चेंज करना है और हमने इसको फॉरवर्ड स्टाइल में करना है। तो आप यहाँ से आ जाते हैं रेफरेंसेस में, और रेफरेंसेस में आने के बाद आपको यहाँ पर कहीं पर अभी अभी मिलेगा इसका फॉर्मेट स्टाइल्स। ये आ गए, नहीं ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। ये आ गए। ठीक है, इस रेफरेंस को डबल क्लिक किया है तो मेरे पास इस रेफरेंस की डिटेल आ गई है। क्या किया, जस्ट सिंपली डबल क्लिक किया है मैंने, और इस रेफरेंस की ये एक राइट साइड पैनल एक ओपन हो जाता है जिसमें इस रेफरेंस की डिटेल आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है APS 7 जी मैडम। वेरी बॉटम पे। ओके, ठीक है, यहाँ से हमने कोई और स्टाइल अगर चूज करना है, एनोटेटेड है, शिकागो है, कोई भी अगर हमने स्टाइल और चूज करना है, जैसे कि अभी हमने हार्वर्ड पे काम करना है तो हम उस पर जाते हैं। इधर आ जाएं और ये इधर से सिलेक्ट करें हार्वर्ड। कैन यू गाइस सी हार्वर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी? जी मैडम। जस्ट वी कैन चूज इट, हार्वर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, और ये आपको हार्वर्ड के मल्टी डिसिप्लिनरी में रेफरेंस जनरेट करके देगा, साइटेशन भी और रेफरेंस भी। ये प्रोसेस चेंज हो गया, हार्वर्ड मल्टी डिसिप्लिनरी स्टाइल चेंज हो गया। अब इसको हमने साइट करना था अपने इस डॉक्यूमेंट में, ऐसा ही करना था ना। तो यहाँ से भी हमने थोड़ा सा एक छोटा सा काम करना होगा, स्टाइल को चेंज करना होगा। एंड नोट पर जाएंगे आप, स्टाइल APS 6, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम हार्वर्ड। हार्वर्ड, ओके, जी मैडम। डन। अब आपने ये दोनों काम कर लिए। ये रेफरेंस है जिसको आपने साइट करना। आपके पास दो कीज हैं, ALT और 2, 1 2 वाला नंबर है ना, 2 2। जिस वक्त ये ब्लू होगा, सिलेक्टेड होगा, आपने ALT को प्रेस करना है और 2 को प्रेस करना है। ALT+2 रेफरेंस आ गया। गाइस फाइन? जी मैडम बिल्कुल। फुल स्टॉप, नेक्स्ट सेंटेंस। I hope everyone is practicing with Dr. Noshin. यस मैडम एवरीवन। नेक्स्ट Okay. सेंटेंस, ये किसी बुक का रेफरेंस है, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास उधर चला जाएगा एंड नोट में। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टिसिपेंट का ऑटोमेटिकली नहीं जाता, तो आप उसको वहां से जब ओपन करेंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट एंड नोट की आपको लाइब्रेरी दे देगा। ये रेफरेंस आ गया आपके पास। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ पर पब्लिशर का नेम लिखा हुआ है और ऑथर का नेम है। ईयर आपके पास 2008 लिखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई और इसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो ऐड करनी हो। लाइक आपको पता है कि इसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन कुछ भी है, XYZ है, आपको पता था, लेकिन इसमें ऐड नहीं था, रेफरेंस में ऐड नहीं था। तो हम सिंपली एडिट में जाते हैं और उसमें प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी ऐड कर देते हैं, XYZ जो भी उसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है। आपको याद है ना कि हमने वहां पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी ऐड करना होता था स्टाइल में। जी मैडम।
कोई और डेट है जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे उस स्टाइल में थी लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है? एनी इंफॉर्मेशन जैसे कि डेट या पेज नंबर ऑफ पेज या पेजेस, पेज नंबर 79 और टोटल इसके पेजेस थे 286 इस बुक के। एग्जाम्पल में एडिट कर रही हूँ मैं ये, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल एडिट कर रही हूँ और आपने इसको सेव कर देना है। अब ये आपके पास रेफरेंस जो है वो मजीद डिटेल में आ गया है। सिंपली आपने इसको सिलेक्ट किया ALT2 और ये आपके डॉक्यूमेंट में आगे जाकर साइट हो जाएगा। Got it? Yes, madam. Isn't it an easy thing, magical thing? थोड़ा सा इजी सा काम हो गया आपका। So this is डॉक्टर how उन्होंने it can मैन्युअली काम किया होगा तो दे विल नो द वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर, अदरवाइज तो फिर इन्हीं चीजें आसान ही लगेंगी। हाँ ऐसा ही है, अगर हमने मैनुअली बैठ के बनाए होते ना रेफरेंसेस एक एक ऐसे फॉर्मेट देखकर फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन खोल के बुक की, तो फिर हम कहते हैं ये तो कोई जादुई काम हो गया हमारे लिए ना, कुछ मैजिकल हो गया सॉफ्टवेयर से। तो अब आपको दोनों चीजें अच्छे से मुझे लगता है समझ आई होंगी, लगता है, पता नहीं अभी तो कि ये फॉर्मेट है, इसको सामने रखें और अपने रेफरेंस को प्रिपेयर कर लें, ठीक है, और आपके लिए बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर से वो रेफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो डॉक्टर सौरभ आई थिंक मैंने ये इन स्लाइड्स में ना दोनों रेफरेंसेस के फॉर्मेट बना दिए थे, क्योंकि ये दो मोस्टली स्टाइल्स यूज होते हैं, एक तो हार्वर्ड और दूसरा APA। तो ये दोनों के अपडेटेड बने हुए हैं टेबल्स। ये टेबल अगर ये प्रिंट लेकर आप कहीं जहाँ पे भी आपकी लाइब्रेरी हो या कोई ऐसी जगह हो वहां पर लगा देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा, सब लोगों के लिए इजी हो जाएगा अप्रोच करना। और इनको इसकी कॉपी भी हैंडआउट्स भी दे दीजिएगा ताकि जब भी कभी ये रेफरेंसेस लगा रहे हो तो वो बहुत इजीली उस फॉर्मेट को फॉलो कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स? Hamza, you were having some queries in last sessions. I hope all queries are clear, but it still is, if there is something you can ask Dr. Nosheen. Assalamu alaikum, madam. Madam, मैंने there are no questions. वालेकुम अस्सलाम। मैडम पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि हमें सब समझ में आ गया। ओके, तो फिर एक डेमो होना चाहिए छोटा सा डॉक्टर नौशीन। जी जी बिल्कुल, कोई एक हमें छोटा सा एक डेमो दे दे, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा। So who is going to volunteer, please? मैडम रोशान कह रही हैं कि मैं वॉलंटियर कर रही हूँ। यस, मैडम रोशान के कंधे पे रख के Please volunteer by force. ये बाय फोर्स ही लग रहा है मुझे। Okay, Dr. Nosheen, thank you so much for your time to conduct this information session through our platform of Monarch Institute of International Studies. Session was extremely informative and I hope well received by all in attendance. So on behalf of my entire team, जी जी, थैंक यू सो मच। so we all would like to thank you for your time and the information you have shared with all participants. We extend our deepest gratitude and we truly appreciate your contribution and look forward to having you back soon with some other topics, inshallah. Inshallah, I'll definitely see you guys there in Monarch, and I'm really happy that you are the part of a very learning and a very supportive institution who are arranging such kind of workshops for you. It's not the organizational learning, but it's also your learning, employee learning. So I really appreciate these efforts from your institution as well. And thank you so much. It's my learning as well. And also two-way process hota hai sab kuch. And I hope everybody is
having fun with the monarch. मुझे पूरा यकीन है कि एक अच्छा टाइम आप सब लोगों का स्पेंड हो रहा होगा. I wish you very good luck for future and with your workshops, many other workshops. Wish you very good luck. Thank you so much, Dr. Nosheen. Allah Hafiz. Allah Hafiz.